Hello, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is April 17, 2021, Saturday. Inspiration of the day is believe in yourself, have faith in your abilities without a humble but reasonable confidence in your own power. You cannot be successful or happy. In today's discussion, we are going to cover these articles from April 17 and 16. Let's start with article number 1 given on page number 1 of yesterday newspaper. 8 entities line up for RBI's on-tap banking license. Few days back we have discussed about the concept of universal banking in India. Universal banking means the financial entity, the commercial bank, financial institution, NBFC undertake multiple financial activity under one roof, thereby creating a financial supermarket. So basically, universal bank participates in many kind of banking activities in both a commercial banks and a investment bank, as well as providing other financial services such as insurance, mutual funds, and other types of financial एक्टिविटीज़। तो बेसिकली यूनिवर्सल बैंक का जो फंडा है वो आरबीआई ने रिसेंटली प्रपोज किया और उसमें आरबीआई ने लाइसेंसिंग के लिए भी इनवाइट किया था। इंडिया इज़ नाउ गोइंग टू हैव द फ्यू यूनिवर्सल बैंक इन द कंट्री एंड फॉर दैट 4 entities from different countries have applied for license to start a universal bank in India. What are those 4 entities? Rapco Bank, Chaitanya India Finance Credit, UAE Exchange and Financial Services, and Pankaj Vesh and others. And apart from these 4 entities, certain other entities or companies or investors have also applied for small finance banks that we generally called as SFBs. तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑन टैप लाइसेंसिंग का एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसके तहत एक वन टैप पे डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ यूनिवर्सल बैंक्स के लिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एप्लीकेशन दे सकते थे, जिसके तहत आरबीआई उनको उनकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करके स्मॉल फाइनेंस बैंक के और यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस देगी। तो रिसेंटली आरबीआई ने उन सारे पार्टिसिपेंट्स और एप्लीकेंट्स का नाम जो है वो डिस्क्लोज किया है, those who have applied for licensing of universal bank as well as SFBs. Now, what is these small finance bank? Basically, these small finance bank is a specific segment of banking created by RBI under the guidance of Government of India. What is the objective of RBI to create these small finance bank? The objective of RBI for a small finance bank is to furthering the financial inclusion by primarily undertaking very basic banking activities to unserved or underserved sections including small business units, small and marginal farmers, micro and small enterprises and other related area. तो अगर हम बहुत क्लियरली बोलना चाहें तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है बेसिकली ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, उनको फंड की अवेलेबिलिटी इंश्योर करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूड की सर्विसेज इंश्योर करते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इम्प्रूव हो कंट्री में। तो यूनिवर्सल बैंक का क्या कंसेप्ट है? एक अम्ब्रेला के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करना। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करना, ऐसे एरिया जहाँ पर फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स एरियाज है जहाँ तक बैंक्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ तक देश के या कंट्री के नूक्स एंड कॉर्नर्स में बैंकिंग सर्विसेज और फंड अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, जिससे कि वाइबल बिजनेस डेवलप हो सके। और अगर हम इन एंटिटीज़ की बात करें, जो 4 एंटिटीज़ जिन्होंने यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए एप्लीकेशन दिए हैं, तो बेसिकली इसमें चैतन्य इंडिया फाइनेंस क्रेडिट एंटिटी दैट इज़ जनरली इन्वेस्ट इन नंबर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इज़ बैक्ड बाई फ्लिपकार्ट फाउंडर सचिन बंसल। और इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपना ऑलरेडी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2009 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था माइक्रो फाइनेंस के केस में, और स्टिल operating in microfinance segment, but now they want to expand their business into universal banking. तो currently जो चैतन्य इंडिया फिन्स क्रेडिट कंपनी है that is operating in 7 states serving approximately over 500,000 clients. रैपको बैंक जो है जिसने एक एंटिटी जिसने यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए अप्लाई किया, इट्स अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी
and this is basically the cooperation between the center and the government of different states like Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, and start started its business in 1969, basically to promote the rehabilitation of repatriate from the neighboring country just like Sri Lanka and Burma. तो cooperative society है रैपको बैंक, और इसी तरह जो अदर टू एंटिटीज़ हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑलरेडी वर्क कर रही हैं. अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस, वी सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, कैलिकट सिटी सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक, अखिल कुमार गुप्ता, DK Grameen Financial Services, all these entities have applied for license for small banks or small finance bank. So these are the participants who are actually interested in universal banking license and small finance banking license. You do not need to mug up the names, you just have an idea about it. RBI is all going to start with universal bank and small finance bank. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5 ऑफ यस्टरडे न्यूज़पेपर. एक्सपोर्ट जंप 60% इन मार्च टू $34.5 billion. So India's mercantile exports surged to $34.45 billion. That is up to 60% year on year basis. So it has seen the jump of 60% in comparison to the previous year on the back of low base effects in the lockdown hit corresponding months last year. और जो 60% का इंक्रीज़ हमें दिख रहा है एक्सपोर्ट पे, अगर हम इसको कंपेयर करें डेटा को, ऐसे तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि ओके 60% इंक्रीज हैज़ बीन सीन इन इंडियाज एक्सपोर्ट. बट इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम एट द टाइम ऑफ मार्च एंड अप्रैल वी वर फेसिंग द लॉकडाउन सिचुएशन, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्टर लॉकडाउन उस समय एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा फॉल किया था. तो बेस इफेक्ट के कारण हमें ये 60% का, या लोअर बेस इफेक्ट के कारण हमें 60% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से मार्च और अप्रैल में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा फॉल किया था. तो उसके कंपैरिजन में, उस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 60% का इंक्रीज दिख रहा है. ऑन द सीक्वेंशियल बेसिस the growth in mercantile export was 23%, the data released by Ministry of Commerce and Industry on Thursday. तो ये जो 60% इंक्रीज दिख रहा है, इट्स जस्ट अ मैजिक ऑफ डेटा, क्योंकि पिछले साल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो था एक्सपोर्ट, तो उसकी वजह से हमें इस बार ये 60%, इस पर्टिकुलर मंथ में 60% इंक्रीज दिख रहा है. बट एक्चुअली इन टर्म्स अगर हम देखें क्या सच में ये 60% इंक्रीज हुआ है, तो शायद नहीं. अगर हम वैल्यू की बात करें, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, इट हैज़ सरपासेस द प्रीवियस हाई ऑफ $32.55 in the month of March 2019, nearly a year before the outbreak of pandemic, signaling a recovery in the demand. तो वैल्यू की अगर हम बात करें, क्योंकि परसेंटेज में तो ऑलरेडी बेस ईयर लो दिख रहा है, अगर हम वैल्यू की बात करें तो 2019 जब नॉर्मल ईयर था, पैंडेमिक नहीं था, उस समय मार्च में जो वैल्यू हुई थी हमारे एक्सपोर्ट के, जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट था उससे ज़्यादा बढ़कर इस टाइम आया है. इट हैज़ सरपासेस द प्रीवियस हाई ऑफ $32.55 इन मार्च 2019. तो 2019 मार्च में जो वैल्यू थी एक्सपोर्ट की उससे ज़्यादा है इस बार मार्च 2021 में वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट. इट्स समवेयर इंडिकेटिंग दैट ओके डिमांड इज इन इंडियन इकोनॉमी इज स्लाइटली रिकवरिंग. ऑल्दो एक्सपर्ट का कहना है कि इट्स अ जनरल हाइक, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ ना कुछ हाइक होता है. तो हम ये नहीं कह सकते कि जो ये हाइक वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट में हमें देखने को मिला है 2 साल के कंपैरिजन में, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी. इट्स अ जनरल इंक्रीज और जनरल ईयर ऑन ईयर फिनोमिना. सो नथिंग स्पेशल अबाउट दिस इंक्रीज. अगर हम एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़ के इम्पोर्ट की बात करें तो इम्पोर्ट भी सिग्निफिकेंटली ग्रो किया. इम्पोर्ट ग्रो शार्पली टू $48.38 billion इन मार्च, दैट इज 54% हाई ऑन ईयर बेसिस. मीन्स पिछले साल मार्च के कंपैरिजन में 54% का हाइक देखने को मिला है इम्पोर्ट में. डेफिनेटली बेस इफेक्ट तो यहाँ पर भी है. तो अगर बेस इफेक्ट को रिमूव करके देखें तो एज अ रिजल्ट हमें फिर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जंप देखने को मिल रहा है. बट बिकॉज ऑफ द लोअर बेस इफेक्ट द ट्रेड डेफिसिट इज स्टिल हाई. पिछले साल इंडिया का ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव हुआ था, बट स्टिल इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग एज द इकोनॉमी स्टार्टेड रिकवरिंग फ्रॉम द पैंडेमिक. द ट्रेड डेफिसिट और द ट्रेड गैप, द डेफिसिट in balance of payment has also started increasing. The
The gap between import and export for March jumped nearly 40%, that is $13.93 billion against the deficit of $9.98 billion during a year ago period. तो पिछले साल तो हम सरप्लस की सिचुएशन में आ गए थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, बट अब धीरे धीरे जो ट्रेड डेफिसिट जो इंडिया का जनरल फिनोमिना है, जनरली हम ट्रेड डेफिसिट में ही रहते हैं, इंडिया उस जनरल फिनोमिना पर या उसी पेस पर आ रहा है। और ट्रेड डेफिसिट, in spite of increasing import and export, the trade deficit is also increasing, as we can see in this particular graph. This yellow area indicates the trade deficit, and if you remember, in this situation at this time after March, in March and April, we were on trade for a shorter period of time, we were on trade surplus situation because of the lack of import. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5. WPI inflation shoots up to over 8-year high in March. So wholesale price index based inflation, in general we call it WPI inflation index. So basically WPI led by soaring prices of fuel and those of manufactured product touched the highest point in the last 8 years. तो पिछले 8 सालों में WPI ने अपना रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रजिस्टर की। तो WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है, जो होलसेल मार्केट है, उसमें बेसिकली ये इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है. दिस WPI इंडेक्स इंडिकेट्स द inflation in wholesale market, not the consumer market, but in the wholesale market. So basically WPI is an index that measures and track the changes in the price of goods in the stage before the retail level, before the consumer level. This refers to the goods that are sold in bulk and traded between the entities and businesses, distributors, wholesalers, instead of between कंज्यूमर के लेवल पे अगर इन्फ्लेशन को मेजर करना होता तो कौन सा इंडेक्स है? CPI. आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि हु पब्लिश द डेटा रिलेटेड टू CPI एंड WPI. Which entity actually responsible for publishing the data for WPI and CPI? तो WPI क्लियर है, होलसेल प्राइस जो चेंजेस हैं उनको ट्रैक करता है. होलसेल मतलब जो बिजनेस एंटिटीज़ के बीच में जो बिजनेस होता है, होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो बिजनेस होता है, उसमें जो प्राइस चेंज होते हैं उसको ट्रैक करता है. तो रिसेंटली द रेट रोज बाय 7.4% इन द मंथ ऑफ मार्च अगेंस्ट 4.17% इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड 2.51% in the month of January. तो जनवरी में WPI 2.51 था, फरवरी में 4.17 हो गया, और अब यही WPI इंडेक्स मार्च के मंथ में इंक्रीज होकर 7.4 हो गया. और दिस पर्टिकुलर ट्रैक इज हाईएस्ट सिंस लास्ट 8 ईयर. और ऐसा कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, दे हैव कॉशन्ड द गवर्नमेंट दैट दिस पर्टिकुलर रेट ऑफ प्राइस राइज इज एक्सपेक्टेड टू बी इन डबल डिजिट्स. अगर कोविड की यही वेव चलती रही तो ये इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट तक, WPI इन्फ्लेशन डबल डिजिट तक पहुंच सकता है. जनरली होता क्या है, जो WPI इंडेक्स होता है वो CPI से थोड़ा सा कम चलता है जनरल सिनेरियो में, और जैसे ही WPI बढ़ना शुरू होता है दैट इंडिकेट्स दैट CPI इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. अगर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस को, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अगर महंगा मिल रहा है कोई सामान, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू पास दिस इन्फ्लेशन टू द कंज्यूमर लेवल ऑल्सो. And this dim hopes for any policy rate reduction in the near terms, even as there is a economic uncertainty amid the second wave of COVID-19. तो जो भी बेंचमार्क रेट्स हैं RBI के, जो रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट्स हैं, SLR, सबको जो इंक्रीज या डिक्रीज करने की, बेसिकली जो प्राइस, जो बेंचमार्क रेट कट होने की बात हो रही थी, फिलहाल के लिए अब इन सारे जो कवायदें उन पर थोड़ा सा रोक लग जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं RBI, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो RBI मार्केट में मनी सप्लाई नहीं बढ़ाएगी. क्यों? क्योंकि जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी फिर से डिमांड बढ़ेगी, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, फिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगी. तो ऑलरेडी जब WPI 7.4 तक पहुंच चुका है, तो अब RBI इस बात का रिस्क नहीं लेगी कि वो मार्केट में किसी भी तरह के जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको कट करे और मार्केट में मनी सप्लाई करे. सी द डायलेमा ऑफ RBI. अभी हम इकोनॉमिक रिसेशन की सिचुएशन में फिर से जाने वाले हैं. रिकवरी हालांकि स्टार्ट हुई थी, बट सेकेंड वेव की वजह से फिर से इकोनॉमी जो है वो डोलरम की सिचुएशन में. तो अब एक्चुअली इकोनॉमी में क्या डिमांड है? इकोनॉमी में डिमांड है कि मनी सप्लाई बढ़े, डिमांड बढ़े, जैसे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं दे विल गेट द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर, और
डेफिनेटली डिमांड बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है तो आरबीआई को और गवर्नमेंट को मार्केट में मनी सप्लाई करना है। लेकिन एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसकी अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई ज़्यादा मनी सप्लाई भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मनी सप्लाई करेगा तो फिर से इन्फ्लेशन डिमांड बढ़ेगी तो फिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई उस प्रपोर्शन में नहीं हो पाएगी। सो इट्स अ वेरी डेलिमा सिचुएशन फॉर आरबीआई। इकोनॉमिस्ट के लिए वेरी डेलिमेटिक सिचुएशन की इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और इकोनॉमिक रिसेशन भी हो रहा है। तो जनरली इस सिचुएशन को हम स्टैग्फ्लेशन की सिचुएशन बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए कोई भी पॉलिसी रेट रिडक्शन अभी नियर टर्म में नहीं देखने को मिलेगा एज पर द इकोनॉमिस्ट, और WPI जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट तक जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक। एंड अगर हम रिटेल प्राइस की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, तो जो डेटा रिलीज हुआ है ऑल्सो शोज द इन्फ्लेशन सर्ज टू अ 4 months हाई। तो CPI भी अपना बढ़ना स्टार्ट हो गया है, पिछले लास्ट 4 महीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हाई रहा। हालांकि रिसेंटली क्वांटिटेटिव ईजिंग करी आरबीआई ने, बट उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा एज पर द इकोनॉमिस्ट। So WPI inflation has printed much higher than the expectation of the economist of 6.4%, with a faster than anticipated upstick in inflation for core items and फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से और जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनके प्राइस में बढ़ने, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से WPI बढ़ रहा। बहुत जल्दी हमें इसका इम्पैक्ट CPI में देखने को मिलेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ this is the graph of WPI and CPI inflation rate in India. So देख सकते हैं recently दोनों equal थे, but now WPI has started increasing and CPI initially started falling, but now as per the economics CPI will also grow like WPI. अब देख लेते हैं some other news clips. Insurance FDI hike tied to solvency margin. Recently insurance sector में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FDI लिमिट बढ़ा दी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे what is the new FDI limit into insurance sector. We have covered that news once it was approved. We have already covered that news. So finance ministry has proposed the insurance companies with foreign ownership of more than 49% will have to maintain a सॉल्वेंसी मार्जिन ऑफ 180%। जब ये FDI की लिमिट बढ़ाई गई थी उस समय गवर्नमेंट ने इस बात को बहुत क्लैरिटी से बोला था कि गवर्नमेंट विल सेव द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरर्स। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, इंश्योरर्स हैं, उनका इंटरेस्ट सेव किया जाएगा। जो 75% तक FDI बढ़ाया जा रहा, तो कई सारे नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन से गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि ये 75% जो FDI इंक्रीज हुआ है इसकी वजह से जो इंश्योरेंस हैं, जो इंश्योरेंस ओनर हैं, जो इंश्योरर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरर एंड द इन्वेस्टर्स। तो उसके लिए कई सारे गवर्नमेंट ने कहा था कि जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंश्योरर्स हैं, वो वरी ना हो कि 75% तक जो FDI बढ़ गया तो फॉरेन कंपनीज आएंगी और उनका इंटरेस्ट हॉल्ट होगा, उनके साथ फ्रॉड होगा। तो इस तरह के बहुत सारे जो फ्रॉड के और जो अदर केसेस हैं जहाँ पर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होल्ड होता है, उस सबको या इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए, इंश्योरर्स की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट विल चेंज द रूल. So now finance ministry has proposed that if any investment insurance company has more than 49% of foreign ownership, in that case that particular insurance company has to maintain 180% of solvency margin. So in case अगर कोई foreign investor default होता है या कोई भी स्कैम की सिचुएशन आती है तो कंपनी के पास ऑलरेडी 180% का मार्जिन रहे, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंश्योरर्स हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करी जाए. इफ़ द इंश्योरेंस कंपनीज repatriate profit in the form of dividend to their shareholders but cannot meet the 180% margin, they will have to set up aside the 50% of their net profit in a general reserve. So number of rules are being changed by finance ministry. They are proposing different drafts in order to save the interest of insurers as well as the investors at the back end when government has already decided to increase the FDI into insurance sector. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के नॉमिनेशंस को लेकर के, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा नॉर्म्स को चेंज किया जा रहा है, जिससे कि ऐसा ना हो कि अगर फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं इनटू इंश्योरेंस सेक्टर तो कहीं से भी उससे जो
कंज्यूमर हैं उनका नुकसान हो, उनका इंटरेस्ट हो या उनको किसी भी तरह के स्कैम का या फ्रॉड को फेस करना पड़े। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट पुश to step up wax output by 10 times by September. So government of India has pushed the Bharat Biotech and 3 public sector enterprises to ramp up the production of Covaxin in India. जिस तरह से कोविड के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिसीजन भी लिया है जो फॉरेन वैक्सीन्स हैं उनको इंपोर्ट करने का, और उसके लिए कई सारे जो फॉरेन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे पोर्टफोलियो इनवाइट किया है। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जैसे भारत बायोटेक और जितने भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं जो बेसिकली कोवैक्सीन के प्रोडक्शन में लगे हैं, उन सबको भी डायरेक्शंस दिए हैं दैट दे शुड इंक्रीज देयर आउटपुट ऑफ कोवैक्सीन प्रोडक्शन बाय 10 टाइम्स। तो अभी जो करंट कैपेसिटी है दैट इज 10 मिलियन डोज पर मंथ, और जो टारगेट सेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो ये है कि 60 to 17 मिलियन डोजेस पर मंथ प्रोड्यूस करनी है बाय जुलाई और अगस्त, एंड 100 मिलियन टारगेट्स बाय सितंबर। तो गवर्नमेंट ने जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं उनको भी डायरेक्शंस दे दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम इट द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इन्वाइटेड द सर्टन फॉरेन फर्म्स फॉर देयर पोर्टफोलियो सो दैट दे कैन एक्चुअली फाइनलाइज फ्रॉम वेयर टू इम्पोर्ट, विच वैक्सीन टू इम्पोर्ट एंड हाउ टू इम्पोर्ट। तो डिसीजन जो भी है इम्पोर्ट को लेकर के फॉरेन वैक्सीन्स को वो आगे आने वाले 3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि इस समय country India is in dire need for vaccination because of exponential increase into the COVID-19 cases. Even few states are very much worried and they are at their worst situation because of increased COVID-19 cases. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सिटी रिट्रीट शोज ग्लोबल बैंक स्ट्रगल विद मार्केट शेयर इन इंडिया। कल के इस न्यूज़ को समझने से पहले ये न्यूज़ देख लेते हैं। कल के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी दैट सिटी बैंक इज गोइंग टू एग्जिट द रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, सिटी बैंक इज ऑल्सो प्लानिंग टू एग्जिट फ्रॉम 12 अदर मार्केट। तो इन इट्स कंसोलिडेशन प्लान, सिटी ग्रुप इज गोइंग टू कंसोलिडेट इट्स retail business from India and from 12 other countries across the Asia and Europe, so that it can actually focus on its core business, that is wealth management business as per the top management. तो consolidation की process में जा रहा है सिटी बैंक। तो कई सारे जो इमर्जिंग मार्केट्स में उसकी जो ब्रांचेस हैं सिटी बैंक की, वहाँ से वो एग्जिट कर रहा है, मोर स्पेसिफिकली रिटेल बैंकिंग से, नॉट एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस बट फ्रॉम रिटेल बैंकिंग। करंटली 35 ब्रांचेस हैं सिटी बैंक की। इंडिया में 2.9 मिलियन रिटेल कस्टमर्स हैं और विद 1.2 मिलियन बैंक अकाउंट्स। और अगर मार्केट शेयर की बात करें तो डिजिटल पेमेंट में 5.87% का मार्केट शेयर है, 6% का मार्केट शेयर है रिटेल क्रेडिट कार्ड्स में, एंड 20% का मार्केट शेयर है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। सो फिलहाल रिटेल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है सिटी बैंक की, और सिटी बैंक को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है एशिया के जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ से। दैट इज़ वाई दे आर गोइंग फॉर कंसोलिडेशन प्लान। और सिटी बैंक के इस अनाउंसमेंट के बाद कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिटी बैंक रिट्रीट जो कर रहा है अगर हम उसको देखें तो बहुत सारे ऐसे ग्लोबल बैंक हैं जो कि इंडिया में बहुत टाइम से अपनी प्रेजेंस इंश्योर किए हुए, बट दे आर स्ट्रगलिंग विद द मार्केट शेयर, दे आर नॉट एबल टू कैप्चर द मार्केट शेयर इन इंडिया। तो ऐसा नहीं कि सिटी बैंक बाहर जा रहा है, अगर पिछले कुछ टाइम से देखें तो बहुत और जो ग्लोबल बैंक्स हैं, जो फॉरेन बैंक्स हैं इंडिया में हैं अभी, दे आर जस्ट सर्वाइविंग, दे आर स्ट्रगलिंग टू गेन द मार्केट शेयर इन इंडिया। और पिछले कुछ सालों का अगर हम 10 साल का डेटा देखें तो जो फॉरेन बैंक्स हैं उनका जो एसेट शेयर है वो इंडिया में ड्रॉप किया है। 2010 में 7.2% का के फॉरेन बैंक्स का एसेट था इंडियन मार्केट में, जो कि ड्रॉप होकर 2020 में 6.8 तक रह गया। अगर रिटर्न ऑन एवरेज एसेट की बात करें, ROAA की बात करें, तो फॉरेन बैंक्स 1.6%, पब्लिक सेक्टर बैंक -0.7%, प्राइवेट बैंक्स are 0.6%. Return on assets is very good, but they are still struggling to gain the market because the market size is decreasing since last couple of years. और इसका बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि जो राइवलरी है जो डोमेस्टिक लेंडर्स की, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट है मैक्सिमम जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसका, तो यहाँ पर जो और जो बिलीव है पब्लिक का फेथ है वो फॉरेन बैंक्स में कम है, इवन डोमेस्टिक बैंक्स में ज़्यादा है। एंड मोर स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट ओन बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें गवर्नमेंट का या कंज्यूमर्स का ज़्यादा फेथ होता है। दैट इज़ वाई फॉरेन बैंक्स आर एक्चुअली नॉट एबल टू get the very good share into the Indian market. So that's all for today, students. This is the reference for this
news analysis. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.